Hi everyone, I welcome you all in Genuine Gunnu classes. In this very video, we are going to discuss about general meeting. General meeting कंपनी लॉ का एक बहुत ही important topic है, मैं आज वही discuss करने वाली हूँ. If we look at the sections which are applied for the general meeting, they are section 96 to section 122 of Companies Act 2013. When we look at the rules that are applied on general meeting is Companies Management and Administration Rules 2014. 2004. Now the question arises, what are the requisites for the valid general meeting? Then there are three requisites for a valid general meeting. The very first one is properly called, the second one is properly conveyed, and the third one is properly conducted. Properly called, it simply means कि आप जो है मतलब मीटिंग को एक प्रॉपर तरीके से बुलाया गया हो, मीन्स कि प्रॉपर टाइम पे नोटिस दी गई हो, नोटिस पर्टिकुलर टाइम जो क्लियर नोटिस का डेट होता है उस पर दी गई हो. प्रॉपरली कन्वेड मीन्स कि हर डायरेक्टर शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर सब तक मीटिंग का जो नोटिस है वो पहुंचा हो. तीसरा है इट मस्ट बी कंडक्टेड प्रॉपरली. इट सिंपली मीन्स दैट के मीटिंग को एक जो प्रोसेस होता है मीटिंग कंडक्ट कराने का वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाए. द the third point in this general meeting is, what is the meaning of general meeting? It simply means two person constitute a meeting. It basically means कि जब दो लोग मिलकर के मीटिंग करते हैं तो उसी को जनरल मीटिंग कहते हैं. तो यहाँ पे question arises that whether one person can organize a general meeting or not. Comment down below that whether one person can organize a general meeting or not. Exceptions are, so the question of this question is, the answer of this question is yes, only one person can also organize an annual general meeting, and that is defined as a section 97 and 98. AGM can be conducted by one member. Now further we'll look at the types of general meeting. What are the types of general meeting? Then there are two types of general meeting. The very first one is annual general meeting. The annual general meeting can be conducted by two persons. The very first one is board of directors and the very second one is NCLT. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जब होता है उस सेक्शन 96 में डिफाइंड है. जब एनसीएलटी के थ्रू होता है तो वो सेक्शन 97 में डिफाइंड है. When we look at the second type, that is extraordinary general meeting, or simply we can call that general meeting. It can be conducted by NCLT or by board of directors. AGM. AGM simply means annual general meeting, that is defined under section 96 of Companies Act. So here what the term actually annual general meeting means, and it means regular meeting of members and held annually for transacting mainly ordinary business of company. It simply means कि जब एक रेगुलर मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है मेंबर्स के द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो नोटिस करो आप. पहला कि रेगुलर मीटिंग होती है किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा. हेल्ड एनुअली, कब होता है, एनुअली. थर्ड पॉइंट. And the fourth one is for transacting mainly ordinary course of business. So the fourth one is ordinary course. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ऑर्डिनरी कोर्स क्या होता है. तो मैं पहले आपको टाइम बता देती हूँ कि एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में गैप्स कितने हो सकते हैं, कब होल्ड किया जा सकता है. होल्डिंग ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इज 9 मंथ्स. जब भी आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है कंपनी का उसके 9 मंथ्स के अंदर आपको पहली एजीएम जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है. होल्डिंग further AGMs 6 months, that is 30 of September. It simply means मार्च में जैसे हम लोगों का ईयर खत्म होता है तो हम फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसके 6 मंथ के अंदर दैट इज 30 सितंबर तक आपको दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है. दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच का गैप कितना हो सकता है, तो वो 15 डेज का गैप हो सकता है. क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स is AGM within 6 months. Now further we will look at the most important term that is under annual general meeting, that is ordinary business.
ये टर्म आप याद रखना क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है एज कम्पेयर टू जनरल मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग. Yes, here is the slide. Ordinary business under AGM जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू पास होता है एंड इसमें जो है 4 तरीके के बिजनेसेस को हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है. पहला, accounts consideration and approval. The second one is dividend declaration. The third one is appointment of directors, and the fourth one is audit and remuneration auditors. So here we can see So here we can see that account and consideration ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अकाउंट्स आपका जो है अकाउंट्स का कंसिडरेशन एंड अप्रूवल होना, डिविडेंड का डिक्लेरेशन होना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन ऑडिट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स. तो इसलिए इसके लिए हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस के अंडर इस कैटेगरी को लेते हैं क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, एक एनुअल जनरल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस क्या है. तो नोटिस मस्ट कंटेन, क्या क्या होना चाहिए नोटिस में. पहला, प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है. दूसरा, सिटी, टाउन एंड विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड. प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है उस सिटी, टाउन और विलेज का नेम होना चाहिए. मस्ट नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे, और वो जो दिन है वो कभी भी नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए. और ये जब भी कंडक्ट होगा बिजनेस आवर्स में होगा और 9 AM to 6 PM में होगा. ऑफिस आवर्स यही है. Now we will look at the notice of for general meeting that is defined under section 101. Notice of general meeting. Guys, if you want to have notes of these handwritten notes, then you can join the Telegram group. I'll share you the link of that group in the description. You can check out there. जनरल मीटिंग सेक्शन 101 के अंदर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेक्शन 101 के अंदर दिया हुआ है. इसमें जो है सेक्शन 101 लेंथ के बारे में बात करता है. लेंथ हियर सिंपली मीन्स कि कितना टाइम पहले आपको नोटिस देना है. तो देयर मस्ट नोटिस मस्ट बी गिवन क्लियर 21 डेज बिफोर, मतलब नोटिस होने के 21 दिन पहले आपको नोटिस देना है कि जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है. दूसरा, इसमें जो है सिर्फ 21 डेज, कहने को 21 डेज है, अगर टोटल देखा जाए तो ये 25 डेज हो जाते हैं मिलकर. कैसे? तो पहला इसमें क्या होता है, लिविंग डेट ऑफ जनरल मीटिंग, ये सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता है. जो लिविंग मतलब कि डेट ऑफ डिस्पैच, जिस दिन मतलब नोटिस डिस्पैच हुई है उससे 2 दिन ट्रांजिट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो सब मिला करके ओवरऑल 25 डेज हो जाता है, पर हम लोग एग्जाम में लिखेंगे 21 डेज. दूसरा, शॉर्टेड नोटिस. शॉर्टेड नोटिस क्या, तो क्या हियर आल्सो आपको कमेंट करके बताना है कि ये शॉर्टेड नोटिस, ये जो शॉर्टेड नोटिस है क्या इसके थ्रू भी एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है, येस और नो. सो हियर द आंसर इज शॉर्टेड नोटिस पे भी एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है. कंडीशंस आर 95% मेंबर्स जो है मस्ट अग्री, 95% मेंबर जो है अग्री करने चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग के लिए. जनरल मीटिंग जो है 95% शेयर कैपिटल मस्ट अग्री विथ 95% वोटिंग राइट. पर इसके लिए एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि 95% वोटिंग राइट्स के साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उन 95% शेयर कैपिटल के साथ उनको अग्री होना चाहिए, मतलब 95% मेंबर्स अग्री करने चाहिए सॉर्टेड नोटिस के लिए. अब है एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस सेक्शन 101 सब क्लॉज 3. 101 आप याद कर लो नोटिस ऑन टू जनरल मीटिंग. इसमें पहला सबसे पहला जो 1 में दिया हुआ है वो है लेंथ. दूसरा जो दिया हुआ है वो है एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस में कि किसको किसको जनरल मीटिंग की नोटिस मिलनी चाहिए. तो पहले मिलना चाहिए मेंबर को, दूसरा मिलना चाहिए एवरी डायरेक्टर को, तीसरा मिलना चाहिए ऑडिटर को, और चौथा मिलना चाहिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव और रिसीवर. फिफ्थ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. नाउ दो ये से सेक्शन 101 का सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि कंटेंट क्या क्या होनी चाहिए नोटिस के. तो प्लेस ऑफ बिजनेस, सॉरी प्लेस ऑफ नोटिस, प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पे भी आपका जनरल मीटिंग होने वाला है उस प्लेस का नाम, किस डे पे होने वाला है उस डे का नाम, किस डेट पे होने वाला है उस डेट का नाम, एंड
व्हाट आर द आवर्स मीन्स क्या किस टाइम पे होने वाला है, मीन्स एग्जैक्टली आपको हर चीज़ बतानी है डिटेल में कि क्या प्लेस है, क्या डेट है, क्या डे है, क्या आवर्स है। ये चारों चीज़ें नोटिस होने चाहिए। तो आप कमेंट करके बताओ कि ये जो सेक्शन 101 में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो किया हुआ है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Statement to be annexed to the notice. Now we are talking about section 102 that talks about statement to be annexed to the notice. Each and every detail of effects on directors and members. So it simply means इसमें जो होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर है वो अगर कोई स्पेशल बिजनेस करना चाहता है, कोई मेंबर है स्पेशल बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो उसके लिए कंडीशन पहली ये है कि ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इफेक्ट ऑन डायरेक्टर्स और मेंबर्स, कि उसके इस स्पेशल बिजनेस से जो करंट डायरेक्टर्स या मेंबर्स है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। दूसरा क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ द शेयर होल्डिंग्स इंटरेस्ट इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। स्पेशल बिजनेस विथ अदर कंपनी, अगर आप स्पेशल बिजनेस कर रहे हैं अदर कंपनी के साथ, डिस्क्लोज करिए अपने इंटरेस्ट को। इफ़ आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है मोर देन है 25%, मोर देन है 2% सॉरी, अदरवाइज, और आपको इसके लिए पेनल्टी हो सकती है 50,000 की, अप टू 50,000, मैक्सिमम जो है 50,000 जा सकता है, या फिर फी 5 times the benefit incurred to the promoter. Thank you guys for the watching. नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं ये वीडियो कब तक आपको चाहिए। कोरम ऑफ द मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। थैंक यू।